Hi, my dear students. I hope you guys are doing well. Welcome to this new series where we'll be helping you to build reading comprehension, cracking abilities right from the scratch. So, today's session, we are going to talk in detail about how do you read a GMAT RC passage without understanding every word. Now that's where the catch lies, because at times most of us are too overwhelmed when we are not able to understand some particular words which we encounter during our reading, and we get absolutely intimidated. So we learn what should be the strategic approach, how to do it in the right way. Let's get started. My name is Juhi Narula. So when we talk about the understanding of what is expected from the examiner's point of view, so they are basically checking that whether you are able to read in between the lines, understand the holistic idea the passage is trying to give you under pressure, right, where the time is a constraint. That's where most of us boggle down. So that's what we are going to avoid. So it's not basically overall trying to just check you on English. That's not the idea. Otherwise they would have given you an English test. Now earlier GMAT used to have that sentence correction wala part where grammar was there. Even that has been removed from the new focused edition. So what are we trying? If you are trying to take this particular approach where you are digging in into every possible sentence, trying to understand in detail, then that's the biggest mistake that you're doing. You're trying too much, very very hard. You are trying to remember every fact. सी इट्स इम्प्रैक्टिकल नो, कि अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं कोई भी टेक्स्ट जो लाइफ में पहली बार इनकाउंटर कर रही हूँ उसको मैं आत्मसात कर लूँ, इम्ब्रेस कर लूँ, और क्वेश्चन सॉल्विंग में मुझे एक भी बार पैसेज पे वापस ना जाना पड़े जब मेरे सामने क्लॉक चल रही है, टाइमर चल रहा है, मेरे पास प्रेशर है, तो दैट्स नॉट एक्चुअली प्रैग्मेटिक ना, ये लॉजिकल भी नहीं साउंड करेगा. ठीक है, यू कैन नॉट रीड इट लाइक अ टेक्स्ट बुक. सो दीज आर द थिंग्स दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली डू, एंड दैट्स वेयर दे लैंड अप इनटू द ट्रबल, राइट. सो दे आर बेसिकली टेस्टिंग यू ऑन रीजनिंग. और ये मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को समझाती हूँ कि कोई भी ऐसा टेस्ट, राइट, सो देयर इज अ टेस्ट which takes students from varied backgrounds and then distributes students to various backgrounds, can be essentially a test of logic. It can be a test of reasoning, नथिंग एल्स, राइट. तो किसी भी डोमेन का बच्चा जीमैट का एग्जाम दे सकता है, और वो कोई ऑपरेशंस में एमबीए करेगा, कोई एचआर में करेगा, कोई मार्केटिंग में करेगा, कोई इंटरनेशनल बिजनेस में करेगा. तो ये आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं है. दिस इज अनलाइक योर IIT entrances or these NEET exams. This is very different. This is essentially your test of logic. तो जब आप ये समझ लेंगे ना, आपका प्रेशर ईज आउट हो जाएगा. जब इंग्लिश का टेस्ट होता है तो बच्चे से एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ भाई हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए. तो आपको कोई लिटरेचर का टेस्ट तो देना नहीं है, आपको तो इंग्लिश का एक्सपर्ट बनना नहीं है. आपका क्या गोल है? आपको एक MBA एंट्रेंस टेस्ट को पास करना है, आपको जीमैट को क्रैक करना है, और वहां के लिए आपको लॉजिक चाहिए, टेम्परामेंट चाहिए, और वही जो लॉजिक और टेम्परामेंट है वो आपको पेपर सॉल्विंग में अप्लाई करना है. So usually what beginners do, they translate mentally, they focus too much on vocabulary वाली समस्या तो is like a serious challenge, right. जैसे कोई वर्ड नहीं आया आपको इंस्टेंट ब्रेक लगा देते हो आप, जबकि ऐसा आप कितनी वोकैबुलरी कर लीजिए, ऑफकोर्स जितनी करेंगे उतना आप सॉलिड रहेंगे एग्जाम में, बट कोई ना कोई नया वर्ड तो आपको एग्जाम में मिलेगा ही, राइट. बट आप कॉन्टेक्चुअली एक दो लाइन आगे पीछे पढ़ के समझ सकते हैं कि वर्ड इवेंचुअली क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहा है. तो दे विल फोकस टू मच ऑन फैक्ट्स, रीड अगेन एंड अगेन. सो बेसिकली आप एक ट्रैप में फंस जाते हो, एक सिसिफियन ट्रैप बोलते हैं, कि आप एक ही सेंटेंस को बार बार पढ़ते हो, और कई बार डेलिबरेटली इस तरीके के सेंटेंसेस इंसर्ट किए जाते हैं जो आपके लिए स्पीड ब्रेकर्स होते हैं. तो स्मार्ट एडवाइस ये होती है कि आप मूव ऑन कर जाइए रादर देन गेटिंग फिक्सेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, राइट. तो जीमैट क्या चाहता है? आपको ऑब्जेक्टिव पता चल जाए, सो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग पैसेज की बिल्ड हो जाए. होल आइडिया ऑफ द पैसेज यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर इज डूइंग, हाउ इज द पैसेज प्रोग्रेसिंग, तो स्ट्रक्चर क्या है, हाउ द आइडियाज आर इंटरकनेक्टेड, राइट. अब अल्टीमेटली गेम क्या है? एक क्लेम एस्टैब्लिश करने का. तो उस क्लेम को एस्टैब्लिश करने में ऑथर कौन कौन सी प्रीमाइस को यूज करेगा, एविडेंस देगा, एग्जाम्पल देगा, दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो आप स्ट्रक्चर के लिए रीड करते हो, तो हम एक स्ट्रैटेजी क्लासेस में यूज करते हैं जिसको हम मैपिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं. तो मैं मैपिंग स्ट्रैटेजी में बच्चों को कहती हूँ 3 गोल्स का ध्यान रखिए जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं. मेरा फोकस ना लूज हो, दैट्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी जनरल क्वेश्चंस हैं जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, और उसमें ये स्पेसिफिकली मैं 4 क्वेश्चंस बोलती हूँ. मेन आइडिया,
मेन आइडिया मतलब व्हाट इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट, और वही यहाँ पे सम अप होके आया है. प्राइमरी पर्पस, तो प्राइमरी पर्पस इज व्हाई द ऑथर हैज रिटन द एंटायर पैसेज, राइट. देन इट इज स्ट्रक्चर, कि पैसेज का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, पैसेज डेवलप कैसे कर रहा है. और टोन, हाउ इज द ऑथर कम्युनिकेटिंग द आइडिया, वर्ड चॉइसेस कैसी हैं, ऑथर का स्टेट ऑफ माइंड क्या है, ऑथर का पीओवी क्या है. तो ये आपको पकड़ना जरूरी है. तो पहला गोल फोकस, दूसरा जनरल क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकें विदाउट रिविजिटिंग द पैसेज, क्योंकि रिविजिट करने का मतलब पूरा पैसेज वापस पढ़ना, और इतना वेरी ऑनेस्टली आपके पास ना टाइम रहेगा ना बैंडविड्थ रहेगी, राइट. तो थर्ड इंपॉर्टेंट गोल है स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर आते भी हैं तो उसके लिए हम रिविजिट कर लेंगे. हमको शक्तिमान नहीं बनेंगे कि हम सारी इंफॉर्मेशन को रिटेन कर लेंगे, बस वी शुड नो वेयर टू गो बैक, राइट. सो दीज थ्री गोल शुड बी अलाइंड. तो रीड फॉर स्ट्रक्चर, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, राइट. सो यू हैव टू रिप्लेस दिस थॉट, ये अपने कंजों से बोझ उतार दीजिए कि मुझे एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए. नहीं कर पाएंगे आप एग्जाम में, राइट. यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन द पैसेज, दैट्स वेयर द कोर गेम लाइज, right. So facts, examples, logic, how these ideas are interconnected, what is the bigger picture the author is trying to create, that's really important, right. So what is the role of this paragraph, what is this passage in general trying to tell me. Say for example, एक पूरे passage ने एक philosophy की, एक policy की, लिमिटेशंस की बात करती है, तो आपको पता है यार पूरा पैराग्राफ डिसएडवांटेजेस की बात कर रहा है. अब क्वेश्चन आया कि भाई पैराग्राफ में कौन सी डिसएडवांटेज मेंशन थी, कौन सी नहीं थी, तो आप रिविजिट कर लेना. व्हाई आर यू स्पेंडिंग अ हेल लॉट ऑफ अ टाइम. आपने 3 मिनट लगा दिए एक एक डिसएडवांटेज को समझ लिया और उस पर सवाल ही नहीं आया, फिर आपने इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं किया ना टाइम का, राइट. सो इज द ऑथर सपोर्टिंग और क्रिटिसाइजिंग समथिंग, द टोन, राइट. Why did the author include this particular paragraph? तो यूटिलिटी क्या थी इन द ब्रॉडर पिक्चर. तो जब आप छोटी डिटेल्स को कनेक्ट करते हैं तो आप एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाते हैं, ठीक है. तो ये मत सोचिए हर लाइन का इंटरप्रिटेशन सोचने बैठ गए तो आपको कोई थीसिस थोड़ी लिखनी है. तो ये हमारी जो इनिशियल थॉट प्रोसेस है ना, हमें इसी को सही करने की जरूरत है. ये तो हम गलत तरीके से पैसेजेस सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फिर हमें रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं जैसा हम चाहते हैं, राइट. तो उससे डिसअपॉइंटमेंट आता है. सो यू ऑलवेज से एफर्ट एंड एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है. सो बेसिकली जीमैट पैसेजेस यही पैटर्न को फॉलो करते हैं, जहां पे पैराग्राफ 1 में एक बैकग्राउंड या प्रॉब्लम या टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, पैराग्राफ 2 में एक एग्जिस्टिंग थ्योरी या व्यू पॉइंट प्रेजेंट करते हैं, पैराग्राफ 3 में अगर ऑथर ने किसी और आइडिया को कोट किया तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो उस थ्योरी को वो ट्रबलसम बता रहा है, राइट, या फिर उस आइडिया को डेवलप करना चाह रहा है. आइदर ऑफ द टू पॉसिबिलिटीज. एंड देन व्हाट इज द एंड गोल और व्हाट इज द अल्टीमेट कंक्लूजन. तो यूजुअली स्ट्रक्चर यही रहता है. अब आप ऐसा मेमोराइज मत करिए, बट कैसे मूवमेंट हो रही है डिस्कशन की उस पे फोकस करिए समझने के लिए, राइट. सो दिस इज व्हाट वी कॉल जीमैट गोल्ड, राइट. एक स्ट्रैटेजी है कि बैकग्राउंड है, एग्जिस्टिंग थ्योरी प्रेजेंट की, उसको क्रिटिक किया, आइडिया को डेवलप किया और एक कंक्लूजन दे दिया. आप इसको 100% नहीं कह सकते ये तो ठप्पा लग गया, बट मोर और लेस फॉलो करिए कि कैसे स्ट्रक्चर या आइडियाज डेवलप हो रहे हैं, वो समझने की कोशिश करिए एवरी टाइम यू आर रीडिंग द टेक्स्ट, राइट. तो अब जैसे एक छोटा सा हम इजी सा पैसेज करते हैं, सिंस आपकी पहला ओरिएंटेशन टाइप का सेशन है, तो कीपिंग द पैसेजेस इजी, राइट. इवेंचुअली जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस सीरीज में, विल बी पिकिंग अप सम कॉम्प्लेक्स आरसीज. तो एक बार आई विल स्टेप असाइड ताकि आप इसको अच्छे से रीड कर लो एंड यू अंडरस्टैंड what the author is trying to convey. Then I'll tell you the strategic approach. We'll also be dealing with some questions, right. तो अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे पैसेज पढ़ने में और ज्यादा टाइम चाहिए, आप एक सिंपल सा काम करना, आप वीडियो को पॉज कर लेना एंड देन यू कैन रीड इट ऑन योर ओन, राइट. So चलो, for many years economists believed that consumer behavior was largely driven by rational decision making. तो इकोनॉमिक्स का क्या थॉट प्रोसेस था, दैट हैज बीन प्रेजेंटेड, राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, इंडिविजुअल्स केयरफुली इवैल्यूएट अवेलेबल इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग चॉइसेस दैट मैक्सिमाइज देयर पर्सनल बेनिफिट. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता था, इंडिविजुअल्स क्या करते थे. सो दिस व्यू पॉइंट एंड व्हाट डू इंडिविजुअल्स डू, दे इवैल्यूएट एवरी इंफॉर्मेशन एंड बिफोर दे make any choice that maximizes their personal benefit. अब जब भी आप रीड करते हैं ना, ये मैं अपकमिंग क्लासेस में भी आपको समझाऊंगी. However, but nonetheless, in spite, despite, इन वर्ड्स को लेकर थोड़े से खास फोकस रहिए. Recent studies, अब स्टडीज ने क्या शो किया, studies in behavioral economics challenge this assumption. These studies suggest that cognitive biases and emotional factors often influence decision making, leading consumers to act in ways that deviate from strict rationality. तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम instinctively हमें एक चीज पसंद है और हम उसको खरीद लेते हैं. तो what do studies reflect? अगर क्वेश्चन आता है तो we can revisit.
एज अ रिजल्ट, अब देख रहे हैं आपका कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे दिया, सम इकोनॉमिस्ट नाउ आर्ग्यू दैट ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मॉडल्स मस्ट बी रिवाइज्ड टू बेटर रिफ्लेक्ट देन एक्चुअल ह्यूमन बिहेवियर, रिफ्लेक्ट एक्चुअल ह्यूमन बिहेवियर। अब देखिए रोल क्या था, पहले ट्रेडिशनल बिलीफ है, नो डिटेल्स मेमोराइज, राइट। सो ओल्ड व्यू, रैशनल कंज्यूमर, ये मेंटल नोट आप बना लेंगे। पैराग्राफ ने क्या कहा, दे चैलेंज द बिलीफ, राइट, वो मैं आपको कह रही थी कि जो रीजनिंग है उसको क्रिटिक या एक ऑल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस को अलाइन करेगा। सो न्यू स्टडीज से इट्स इमोशन प्लस बायस दैट इन्फ्लुएंसेस डिसीजन मेकिंग। Then there's the conclusion or implication, and models may need revision, right? So done, there is no need of rereading. Revisiting could be a different thing, but rereading is not important. And similarly memory पे अगर आप देखें, ये आप unnecessary pressure लेके चल रहे हैं जो आपकी पूरी क्वेश्चन सॉल्विंग के प्रोसेस को ruin करेगा। जब आप अपने ऊपर दबाव ले लेंगे कि मेरे को तो सब याद करना है, that cannot be done, ना, that's not wise. So don't get into that particular trap. अब जैसे सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, what is the primary purpose? एक बार आप खुद भी ट्राई करो, then I will tell you how do we eliminate the incorrect answer choices, what is the right thought process and approach. अगर आपको लगता है कि मेरी मैम आप बहुत जल्दी जल्दी करा रही हैं, मुझे ज्यादा टाइम चाहिए, तो आप पॉज कर लो, राइट, यू टेक अ लुक, evaluate all the options, pick the right one and know why the other are wrong. तो मैं आपको अपकमिंग सेशंस में बताऊंगी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है, कि हमारी जो 4 या 5 चॉइसेस हैं उसमें 4 तो डेफिनेटली रॉन्ग है, तो हम इनकरेक्ट को एलिमिनेट करते जाते हैं, जो बचेगा वो करेक्ट आंसर है, राइट। तो अगर हम देखें ऑप्शंस को, तो आपका जो पहला पॉइंट है कि आंसर कौन सा करेक्ट है, तो एक बार सारे पढ़ लेते हैं। टू एक्सप्लेन हाउ कंज्यूमर्स मेक परफेक्टली रैशनल डिसीजंस, टू क्रिटिसाइज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स फॉर लैकिंग एविडेंस, टू डिस्क्राइब अ शिफ्ट इन इकोनॉमिक थिंकिंग अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। तो एक बार अगर आपको पैसेज पूरा पकड़ में आ गया ना, तो प्राइमरी पर्पस के क्वेश्चन के लिए वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका बहुत इजीली कन्वीनियंटली सॉल्व हो जाएगा, राइट। अगर आपने मेंटल मैपिंग कर ली है, या मे बी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो स्क्रैच पेपर पे कीवर्ड्स लिखते जाइए, दैट्स व्हाट मैपिंग इज ऑल अबाउट, right? To compare emotional and rational decision making, to propose a new economic model. अब एलिमिनेशन आसान है, पैसेज ओल्ड बिलीफ से नए चैलेंज पे, और फिर इम्प्लीकेशन कह रहा है कि यस देयर इज अ शिफ्ट इन द थिंकिंग, तो सी को तो पकड़ने में कोई खास डिफिकल्टी है नहीं, राइट। हाउ कंज्यूमर्स मेक परफेक्टली रैशनल डिसीजन, जो ऑथर है उसका पीओवी तो एंटायरली ऑपोजिट है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्सल, ऑपोजिट ऑफ व्हाट द ऑथर हैज सजेस्टेड, राइट। Now, if you take a look at the B choice, to criticize behavioral economics for lacking evidence, to understand this is very strong language. ऐसा कोई criticism नहीं offer किया, right? There's a different POV, but criticizing is altogether a different tone. Comparison नहीं किया, to compare emotional and rational decision making, कहीं comparison नहीं करता author. To propose a new economic model, कोई नया economic model propose नहीं किया। अब यहाँ पे ना I will just give you this particular acronym, hazy comparisons का, जैसे आपने देखा, तो हम पुश की बात करते हैं, राइट। सो वेयर H इज, कैसे आप एलिमिनेट करोगे, H स्टैंड्स फॉर हेजी कंपैरिजन, राइट। कोई ऐसा कंपैरिजन जो इररेलेवेंट है, कंपैरेटिव टर्म बेटर सुपीरियर इंफीरियर ऐसी शो करती, बट एक्चुअली कंपैरिजन नहीं हो रहा, सो H इज फॉर हेजी कंपैरिजन, राइट। P इज पार्शियली करेक्ट आंसर। तो कई बार क्या होता है कि हम ऐसे इमोशनली ड्रिवन हो जाते हैं और पार्शियली करेक्ट आंसर्स को पिक करके आ जाते हैं, दैट्स रॉन्ग। U इज अनस्टेटेड इंफॉर्मेशन, जो बोला नहीं, क्योंकि एविडेंस बेस्ड रीजनिंग है, तो कोई भी ऐसी आंसर चॉइस जो पैसेज से वैलिडेट नहीं हो रही, वो मेरा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। एंड S इज स्ट्रॉन्गर क्लेम्स, ऑथर के क्लेम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्लेम करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो जब भी आप एलिमिनेशन करें, पिक मत करिए, राइट। सो आपका गोल ये होना चाहिए कैसे मैं इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट कर दूं, जो बचेगा वो मेरा करेक्ट आंसर है, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वी आर नेवर गोइंग टू चूज द आंसर एज यूजुअली वी डू इन क्वांट, बट इन वर्बल एबिलिटी, दिस पर्टिकुलर डोमेन, माय सजेशन वुड बी दैट यू कीप ऑन एलिमिनेटिंग द इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस। टू बिगिन विद आप ये फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एक और ट्राई करिए। To make your revision smoother, I've given you the reasoning also in detail, ताकि आपको पता रहे कि हम क्यों एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं। That's also really important. So which of the following is most likely true according to the passage? Traditional economic models already account for emotional factors. Consumers never act. ये देख रहे हैं extreme language. Behavioral economics rejects all earlier theories. Some consumer decisions are influenced by non-rational factors.
रैशनल डिसीजन मेकिंग हैज बीन प्रूव्ड इनकरेक्ट। अब आप देखिए पॉसिबिलिटी ट्रू होने की, राइट, मोस्ट लाइकली, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर इट टू बी ट्रू। नाउ इफ यू टेक अ लुक एट द ऑप्शंस, डी ऑप्शन ऑफ कोर्स आपको दिख रहा होगा, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉन रैशनल फैक्टर्स, तो ये तो हम इंक्लूड कर लेंगे। नाउ सी नेवर, ऑल, अच्छा मैंने आपको जब बोला था एज स्ट्रॉन्गर क्लेम्स में, तो आप ये कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं जिसको लेकर कॉशियस रहिएगा। ऑल, ऑलवेज, नन, ओनली, मस्ट, नेवर, राइट, इनको लेकर आपको हमेशा केयरफुल रहना है। जैसे यू कैन नॉट से ऑल अर्लियर थ्योरीज, नेवर अगेन इज रॉन्ग, they already, no, that's opposite again, that's reversal, this is opposite of what the author is trying to say, right? Has been proven, no, is it proven incorrect is again not validated, right? So we'll just present it in a better way. B on E extreme language है, C distortion है, A opposite है, D directly discussion से validate होता है, ठीक है जी। चलिए, so let's do this particular set as well. So in recent years, urban planners have promoted the development of compact cities, arguing that higher population density reduces environmental impact. So again, what is the traditional POV? Usko introduce kiya, right? So what is the baseline along which the discussion would be built? What would be the background information that has been presented here? Now, proponents claim that density is lower energy consumption by decreasing reliance on private व्हीकल। सो प्रोपोनेंट्स का क्या पीओवी है उसको प्रेजेंट करती है। आपसे अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है प्रोपोनेंट्स का क्या पीओवी है, यू कैन रिविजिट। क्रिटिक्स, अब क्रिटिक्स की व्यू पॉइंट आ गया। कंटेंट दैट इंक्रीज डेंसिटी कैन स्ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ। दे आर्ग्यू दैट कंजेशन एंड लिमिटेड ग्रीन स्पेसेस में offset environmental benefits, and then एक conclusive सा remark आ गया, despite these concerns several studies indicate that well designed dense cities can balance environmental sustainability with livability। चारों पैराग्राफ्स जो है स्मॉल पैराग्राफ्स है उनका फ्लो आपने पकड़ लिया, पैसेज आपका कंट्रोल में आ गया, राइट। हमारा कुछ किस तरह का स्ट्रक्चर बना, प्रोपोनेंट्स का आर्ग्यूमेंट, क्रिटिक्स का काउंटर आर्ग्यूमेंट, और ऑथर एक बैलेंस कंक्लूजन की तरफ लीन कर रहा है। और मे बी जो इनिशियल पीओवी था कि क्या ट्रेंड है, उस ट्रेंड को प्रेजेंट किया गया है, राइट। सो दैट्स हाउ द व्यू पॉइंट इज बीइंग डेवलप्ड। तो कैसे आइडियाज डेवलप हो रहे हैं इस पे जोर दीजिए, ठीक है। So the author's attitude, so again it is tone towards compact city is best described as, so take a look at the options, right? So strongly supportive, highly skeptical, neutral and detached, cautiously optimistic, indifferent। तो मैंने आंसर तो आपको दे ही दिया था। So balanced tone, जैसा मैंने बोला था कि GMAT यूजुअली बैलेंस टोन पे खेलता है, बट सी क्रिटिसिज्म तो एक्नॉलेज कर रहा है पर पोटेंशियल देखता है। इफ यू सी स्ट्रॉन्गली सपोर्टिव नहीं, सो supportive could have possibly worked, highly skeptical again is what extreme in nature, right? और उसके बाद C और E तो सीधा conclusion को ही bypass कर रहा है, तो optimistic है but the author is being careful, right? So author is not having an extreme point of view. Several studies indicate well designed densities can balance, so there is positivity, right? Optimism to show हो रहा है, right? So this is where we can reach to our answer very easily and we can pick D as the right choice. Chaliye, we'll do one more question. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्रिटिक्स मेंशन्ड इन द पैसेज वुड लाइकली अग्री, तो मैं यहाँ पे रिविजिट कर लेती हूँ ना, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो व्हाई डू आई वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन माय मेमोरी, राइट? बिकॉज मैं तो एग्जाम के स्ट्रेस में हूँ, मैं रिटेन भी सही से नहीं कर पाऊंगी। तो क्रिटिक्स आप मैप करके आए थे, क्रिटिक्स कंटेंट दैट इंक्रीज डेंसिटी कैन स्ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ। दे आर्ग्यू दैट कंजेशन एंड लिमिटेड ग्रीन स्पेसेस में ऑफसेट एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। तो अब आपको स्टेटमेंट भी पता चल गया, राइट? रिविजिट कर लिया, क्वेश्चन क्लियर है, फोकस आपका केवल उसी स्टेटमेंट पे, तो फिर आपको कोई भी चीज परेशान नहीं करेगी, राइट? कॉम्पैक्ट सिटीज ऑलवेज, अभी आपको मैं सारे एक्सट्रीम वर्ड्स बता के आई हूँ, नहीं पिक करना। इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर चैलेंजेस आर अ कंसर्न, यस। अर्बन डेंसिटी हैज नो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, प्राइवेट व्हीकल्स आर अननेसेसरी, ग्रीन स्पेसेस आर इररेलेवेंट। तो आपको कुछ चॉइसेस आउट ऑफ स्कोप करके भी एलिमिनेट कर दे रही हैं, ठीक है। सो सेकेंड चॉइस आप पढ़ के आए हो, दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग है। इसके जनरल क्वेश्चंस तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया, आप कर लेंगे। स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए आप उन्हीं स्टेटमेंट्स में जाएंगे जहां पर आंसर है, तो आपका जो ओवरऑल प्रोसेस ऑफ रीचिंग टू द राइट आंसर है ना, बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ना बर्डन आएगा, ना आप ओवरवेल्म होंगे, ना आप कोई मेमोरी के बेसिस पे ट्रैप में फंसेंगे, राइट? चलिए, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट सजेशंस।
पूरा पैसेज बार बार मत पढ़िए, एक बार में ढंग से पढ़िए, स्ट्रक्चर पकड़ने की कोशिश करिए, एक आधे वर्ड पे फिक्सेटेड मत हो जाइए, आप कॉन्टेक्चुअली वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश करिए, राइट। सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड द फ्लो। एट टाइम स्टूडेंट सब चीजों को अंडरलाइन कर देते हैं, उससे खिचड़ी ही बनती है, राइट। एंड रीडिंग ऑप्शंस बिफोर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। तो सबसे पहले पैसेज पकड़ना है, क्वेश्चन एक्चुअली एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द पैराग्राफ एंड द आंसर चॉइसेस, राइट। So between the passage and the options, what's happening is that question acts as a bridge. तो जब तक आपको question की clarity नहीं है, you are not clear with what is the goal that has been assigned to you, you can never reach to the right answer, right? Then like I told you कि GMAT is not English का test, it's a reasoning का test. So understand what the role of the paragraph is, revisit whenever required, right? Track how the development of the ideas are taking place in the discussion. Unnecessary detail को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली काम करेंगे तो आपके लिए आई एम श्योर आरसी मैनेजेबल हो जाएगा। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। देयर विल बी मोर helpful videos that will be coming in the upcoming days. So till then, keep working hard, stay consistent. All the best.